I am feeling extremely proud of your achievement. This is not just an exam you cleared, you have created a path, you have broken a path for many, Yes. many girls. मैं खुद में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कभी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नीट so I didn't score well. Say him like this, that please give me last chance. I want to go and I want to study and I want to do MBBS. I don't want anything else. वो दिन के बारे में बताओ जब आप घर से निकले, आप बस से Oh my गए God. या आपको किसने छोड़ा? Oh my God, that day. ओवर देयर कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? लोग सच में दोस्त बनते हैं या धोखे मिलते हैं? मेरा कजान में एक जगह कॉलेज है, उससे 1 घंटा दूर हॉस्पिटल में क्लासेस लगती है. मतलब जहाँ टीचर्स रहते वहाँ स्टूडेंट्स जाते. टीचर कभी ट्रैवल नहीं करते. ये जो दिमाग के नॉइजेस कभी कभी दे आर लाउडर देन दोज अराउंड यू, तब आप कैसे डील करते थे? मतलब स्पेसिफिकली एफएमजी के टाइम पे बहुत लाउडर नॉइज थे वो दिमाग के, क्योंकि वो कभी कभी कहते कि तू फेल ही होने वाली, तुझे कुछ नहीं आता है. Hi everyone, I'm Dr. Anusha Rathi, a microbiology faculty at the PW MedEd. और आज इस चैनल पे मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत स्पेशल पॉडकास्ट विच इज़ स्पेशली वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी. आई हैव विद मी वैष्णवी, Dr. Vaishnavi. Yes. So congratulations, Dr. Vaishnavi. Thank you so You've much, just ma'am. cleared FMG because जितना शायद वैष्णवी खुश होगी उससे ज़्यादा खुश हम हैं for her result. And आज का जो podcast है it is on a special note बिकॉज वैष्णवी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल अर्न करके सिर्फ अपना सपना पूरा नहीं किया, बल्कि हमारे देश की बहुत सारी गर्ल चाइल्ड्स के सपनों को विंग्स दिए हैं. सो आई एज अ टीचर, एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज अ मेंटोर टू many many girls who take up medicine, I am feeling extremely proud of your Wow. achievement. This is not just an exam you cleared, you have created a path, you have broken a path for many Yes. many girls. क्योंकि टू स्टार्ट विथ हम बिल्कुल वी वांट कि आप हमारे ऑडियंसेस को यू टेल अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. Yeah. So my name is Vaishnavi, Dr. Vaishnavi Santosh Zavre. Excellent. So, and I studied at Kazan State Medical University, which is in Russia. So I completed my sixth year of course over there, and I cleared my FMG in first attempt, and I scored 182 marks. And again, I would like to thank all of faculties. Like, it's not about everything is not scripted in life. Some things are really, and we are really grateful for the faculties. Because of them, we understand the basic concepts of everything, and we are more like making it understandable for ourselves, because without concepts, if you are just rectifying everything, it will not help in the end. And when the screen is in front of you, you should know your concepts, because rectifying will help in few subjects, but if you learn by your heart and you follow your faculties, then it will be just, your result will be just wow. And at the end of the day of your results, you'll be just grateful that wow, you gave your 100% and it's really worth giving your 100%. या मैं खुद में इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कभी बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नीट. सो आई डिडंट स्कोर्ड वेल. सो फैमिली वाज लाइक रिपीट कर ले यार. एंड मैं ऐसी थी कि मुझे रिपीट के डिप्रेशन में नहीं जाना है, बिकॉज दैट टाइम आई डोंट एबल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स केमिस्ट्री वेल. So somewhere inside I know that I wouldn't able to do it. But just because parents were saying, family members were, repeat, I said no, I don't want to repeat. So then another option was remaining only abroad MBBS. So for choosing that, it was more for my dad, not for me, because he have to face society, he have to answer society, he have to answer families. yes. And so it was more for him. But at the end I said that please, I literally say him like this, that please give me last chance. I want to go and I want to study and I want to do MBBS. I don't want anything else. So please give me chance. So he said yes, okay, let's start this journey. So it's like it wasn't so Started. much easy for me. As a girl child, as a single girl child, it wasn't easy. But because of my dad, he said okay, let's do it.
so it's now I'm here. तो आप सिंगल चाइल्ड हो या गर्ल चाइल्ड? सिंगल, यू हैव अ ब्रदर? Single child. सिंगल चाइल्ड हो Yes. एंड अ गर्ल ऑन टॉप ऑफ दैट. Yeah, that's the thing. Only. Vaishnavi, a lot of the girls are going to watch this and a lot of your juniors, बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स भी हमारा पॉडकास्ट देखते हैं. Yeah. तो आप कहाँ से हो? Where do you belong from? Actually, I'm from महाराष्ट्र. हम्म. मी मराठी मुलगी आहे. अँड स्पेसिफिकली सांगायचं तर मी जुन्नर मधनं आहे, जिथे हा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म झालेला आहे. हा. मी तिथनं आलेली आहे. सो आई एम फ्रॉम देयर एंड मेरा सब एजुकेशन वही हुआ है. मतलब स्पेसिफिकली पुणे में मैंने 11-12 फर्ग्यूसन कॉलेज में की है और आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. अच्छा वैष्णवी, आपने बताया अबाउट क्लियरिंग एफएमजी एंड हाउ वी नीड टू ट्रस्ट द टीचर्स और वो सारी बातें आर फॉर द स्टूडेंट जो पहुंच गया वहां तक एंड देन देयर जर्नी. अभी मैं चाहती हूँ कि आप एक वो लड़की स्मॉल टाउन से, आपके पुणे में ही इन योर होम टाउन, अगर कोई देख रही है जिसको सेम चीजें फेस करनी पड़ेंगी, तो आप उसके लिए होप हो. यू आर द फेस ऑफ होप फॉर हर, राइट? सो थोड़ा सा आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. तो मुझे वो दिन के बारे में बताओ जब आप घर से निकले. आप बस से गए या आपको किसने छोड़ा? ओह माय गॉड, दैट डे, लाइक जब डिसाइड हुआ कि ये फाइनली जा रही, इसका टिकट बुक हो चुका है, अब बैग्स पैक हो रही है, तब सब नॉर्मल लग रहा था. बस जा रही हूँ, बैग्स पैक हो रहे थे. एक वेइंग का बड़ा मशीन लाया गया था क्योंकि फर्स्ट बेटी इंटरनेशनल, उसकी भी फर्स्ट फ्लाइट लाइफ में, और वो भी इंटरनेशनल. बैगेज वगैरह पैक हुए. 32 kg फिक्स हुआ. गए फिर मतलब कार बुक की थी मम्मी पापा में, गए फिर मुंबई. फिर हमारी फ्लाइट थी. फिर एक नाइट पहले बुआ के यहाँ स्टे था. फिर नेक्स्ट डे हम जाने वाले थे. सब नॉर्मल जा रहा था. इन द मॉर्निंग वी वेंट फॉर एयरपोर्ट इन द अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली. बट जैसे मैं एयरपोर्ट से अंदर गई, माई डैड वॉज क्राइंग. ओ माई गॉड, इट वॉज फर्स्ट फीलिंग लाइक मुझे ऐसे हिट हुआ कि यार अब मैं जा रही हूँ और अब मैं पापा से 1 साल बाद ही मिल सकती हूँ. तो पापा बहुत रो रहे थे और मैंने कहा पापा मत रो यार, ये वो. और मैं ऐसी हूँ ना, इंडिपेंडेंट, ये अब्रॉड जाके फील हुआ. जब घर पे थी आई वॉज डैडीज गर्ल. लाइक पापा मेरा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जो भी है, पापा आप. तो प्रॉब्लम से डील करना आई डोंट नो. सो एयरपोर्ट के अंदर गई, पहले लगेज का इशू, पापा प्लीज. तो पापा को पता है अंदर तो नहीं आ सकते, लेकिन समहाउ एक गार्ड को 500 दिए. वो कहा आप ये स्क्रीन तक जा सकते हो. अच्छा. तो उनको बस मैं एक स्क्रीन से ट्रांसपेरेंट दिख रही थी. सो ही वाज लाइक हु, यहाँ पे ऐसे हाथ करके वगैरह दिखा रहे. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब अपने साथ कोई तो पापा है बस. मतलब मेरे साथ सही में वही थे बस. क्योंकि मॉम वाज लाइक कि जो भी पापा का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा बेटा. क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगी तुम जाओ तो मुझे भी कहा जाएगा तुम ही थी जिसने लड़की को बाहर भेजा. तो आई लाइक मेरे साथ पापा कॉन्स्टेंटली थे इस जर्नी में. तो वो ग्लास डोर से जो आपको पापा दिख रहे थे, that was the confidence. Yes, that was the confidence, and he is the only reason that whoever I am, like डॉक्टर मेरे नाम के आगे लगाए, बस वही एक रीजन है. क्योंकि मुझे स्टिल याद है कि कुछ भी हो, मतलब मेरे लाइफ में मैं उनको कॉल करती थी. रात को मैंने मिस किया, आई जस्ट यूज्ड टू कॉल हिम एट एनी इन इंडिया. आई स्टिल रिमेम्बर 1-2 बजे थे रात को, मैंने कॉल किया पापा मुझे नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुझे घर आने. वो कहा टिकट बुक कर लूं. मतलब पेरेंट्स का कैसे होता है कि नहीं बेटा रह ले. उनका फर्स्ट था टिकट बुक कर लूं, मतलब तुझे आना है. देन दैट नाइट वेंट एंड मैंने खुद को समझाया कि भाई मतलब इतने वो सोच रहे तो तू थोड़ा सोच कि क्यों मतलब इतना पैसे वगैरह बर्बाद करने. सो मैं रह ली वहाँ. लेकिन इन एवरीथिंग लाइक कुछ भी, फ्लाइट मिस हो गई, पापा फ्लाइट मिस हो गई, वो कह रहे कितने पैसे भेजू, मतलब डांटना एंड ऑल इज देयर, बट आफ्टर दैट कितने पैसे भेजू पहला क्वेश्चन. मतलब ऐसे रहता ना, कोई ढाल बन के आपके पीछे खड़ा रहता कि तुम करो भाई तुम करो. तो वो सब था मेरे लिए वो 6th ईयर मेरे पूरी जर्नी में, मेरे पापा मेरे साथ. पापा और वो ग्लास डोर पे उन्होंने खड़े होके तुम्हें एक विजुअल दे दिया था कि मैं हूँ. हाँ एकदम, वो रो रहे थे. मैंने इतना रोते हुए मेरे पापा को कभी नहीं देखा. मतलब मैं कॉलेज में गई थी तब भी रोए थे, लेकिन इट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो इतना रो रहे थे और मैं देख रही थी. मतलब ये किसी बच्चे के लिए इजी नहीं होता, किसी के. और मतलब पता नहीं, मैं बार बार ये कह रही हूँ, ये बच्चे के लिए नहीं, एक लड़की के लिए इजी नहीं होता.
क्योंकि जो अपने पापा से बहुत कनेक्टेड है और सोसाइटी में इतना प्रेशर है कि वो कह रहे सब पापा को कि मत मत, और पापा कर रहे उसके अपोजिट, उनके लिए भी नहीं। और मतलब यूजुअली एफएमजीज की स्टोरी अब तक रही है कि यार ये पास ही नहीं होते, इनकी एग्जाम ही नहीं निकलती, मत भेजो, यहाँ आके फिर लटक जाएंगे। मतलब हमारे यहाँ एक स्टोरी थी जो पास नहीं हुई थी, उसको इतना बोला जा, अब तक बोला जा रहा है यार तेरा हुआ लेकिन उसका नहीं हुआ। मतलब बहुत टॉन्टिंग जो भी होता है वो होता है, बहुत होता है चीजें। मतलब अब तो रिजल्ट अच्छा आ गया इसलिए अच्छा आ गया, लेकिन नहीं आता ना तो OMG एग्जाम्पल ही सेट हो जाती बाकी लोगों के लिए कि देखो भेजा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अभी तुम एक डिफरेंट एग्जाम्पल बन गई हो फॉर Thank लॉट God. मेनी गर्ल्स एंड यू हैव ब्रोकन दैट ग्लास सीलिंग। Yeah. तो अच्छा, वापस चलते हैं Yes. वहीं पे उसी दिन पे। तो वो जो विजुअल था आपका कि पापा खड़े हैं शीशे के पीछे, वो कभी जब आप कजाक में गए, वहाँ हाँ, का कंडीशंस इज हाँ, नॉट, वेदर देख लो, नई हाँ, जगह, कोई भी हाँ, जगह, दिस वाज योर हाँ, फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, yes, फर्स्ट ट्रिप आउटसाइड फ्रॉम होम, yes, मम्मी पापा से अलग पहली बार आप कहीं जाके रह रहे थे, yes, वो भी एक नई कंट्री में, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। yeah, तो वो जो अकेली रातें जो है फाइट, yes. तब वो पापा दिखाई देते थे वो ग्लास सीलिंग के पीछे मैंने खड़े? एक्चुअली उन दोनों का फोटो प्रिंट कर रखा था और मेरे टेबल पे रखा था स्वीट। कि कुछ भी हो मुझे पता है। मतलब मेरे उनसे भी झगड़े होते हैं, ऐसे नहीं कि हम्म। मेरे उनसे मतलब बहुत झगड़े होते पापा मम्मी से, लेकिन हाँ। उनका ऐसा होता है ना कि पता है यार कुछ भी हो जाए, है कोई तो अपने पीछे है। तो जब भी ऐसा रात को एक बेस्ट चीज सीख ली थी कि धीरे रोना। मतलब इंडिया में जब थे ऐसे जोर जोर से कि इसको पता चले इसको पता चले, वहां पे जाके पिलो, बस पिलो पे आंसू जाते थे, पता था कि ऐसे स्लोली रोना सीख गए थे और बस याद करते थे। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं कि हर वक्त कहे कि यार पापा, मतलब एक इंसान आपके लिए कर रहा है तो बस आप मांगते ही रहो, ऐसी चीज नहीं करनी थी मुझे। तो मैंने कभी कहा नहीं कि पापा मेरा टिकट मतलब ये करवा लो। क्यों आता था रोना? क्योंकि एट द एंड ऑफ डे जो पापा चीजें करते थे वो भी मुझे करनी थी, जो मेरी मम्मा चीजें करती थी वो भी मुझे करनी थी। मतलब जो भी मेरे लाइफ में पार्ट थे वो सब चीजें, खाना तुम बनाओ, ग्रोसरीज तुम लाओ, और वो भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल कंडीशन, टेम्परेचर जा रहा है -25 -30 एंड यू आर गोइंग एंड बाइंग दैट ग्रोसरीज फ्रॉम पैथरोज का। एंड वो बैगेज इतने हेवी होते थे ना, ऐसे नहीं आप टैक्सी नहीं कर सकते ना। मतलब वहां ऐसा है कि थोड़ी अपने यहाँ ऑटो मिल जाती, वहां नहीं है ऐसा। तो हमें हाथ में ही कभी कभी लगता था भाई उंगलियां रहेगी नहीं रहेगी पता नहीं, एकदम फ्रोजन हो जाता था सब। तो मतलब ऐसी कंडीशंस आती थी कि घर वालों की याद आ जाती थी कभी कभी, कि खाना वगैरह याद आ जाता था कि यार मम्मी होती तो आज बना देती, तो आज स्टडी कर लेते, कल एग्जाम है, आज हम ही खाना बना रहे। और आधे मतलब बहुत सारे बच्चों का खाना तो ऑमलेट ब्रेड ही है शायद कजान में। हाँ, बस। तो वहाँ का कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा होता है, मतलब फॉर द गर्ल्स हु आर वाचिंग, जो वहाँ जाने वाले हैं, हाँ, कि क्योंकि किसी के भी दिमाग में ये होता है थॉट कि पता नहीं वहाँ क्या हो जाएगा, इज इट सेफ, यहाँ पे हम लोकल हैं, हमारे आसपास कम्युनिटी हमारी है, यू नो देयर इज अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द पेरेंट्स, फॉर द फैमिलीज एंड फॉर द गर्ल्स। तो इन दैट फॉरेन लैंड, ओवर देयर कॉलेजेस में प्रोफेसर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? लोग सच में दोस्त बनते हैं या धोखे मिलते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं कजान स्टेट से हूँ, तो वहाँ ऐसा रहता है कि कॉलेज एक है, मतलब हमारा कैसा रहता है जहाँ कॉलेज वही क्लासेस लगेगी, वहाँ ऐसे नहीं रहता। मेरा कजान में एक जगह कॉलेज है, उससे 1 घंटा दूर हॉस्पिटल में क्लासेस लगती है। मतलब जहाँ टीचर्स रहते वहाँ स्टूडेंट जाते, टीचर कभी ट्रैवल नहीं करते। इंडिया का सिस्टम के एकदम अपोजिट है, स्टूडेंट्स ट्रैवल करते। तो वैसा था वहाँ पे, हम जाते थे, हम क्लासेस वगैरह करते थे, और एक्चुअली स्टाफ सपोर्टिव था। लेकिन वो जो होता है ना, अब मैं आपसे हिंदी में बात करी तो हम कनेक्ट हो पा रहे। एक रहती है हमारी मदर टंग, उनकी है रशियन, तो वी मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे उनसे। दो वी लर्न समथिंग लाइक नॉट टॉप ऑफ इट, बट समथिंग हमने पढ़ा है रशियन में, तो सम बेसिक चल जाती है हमारी लाइफ, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे उनसे। तो वो एक मतलब फील हुआ हमेशा कि कनेक्ट नहीं कर पाए टीचर से, रशियन टीचर से। बाकी इंग्लिश में जितनी फॉर्मल बातें हो सकती थी उतनी हो, मतलब अच्छा है, स्टाफ वगैरह अच्छा है। एक्सेप्ट सम टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटी में कि वो लैटिन वगैरह के लिए परेशान करते लैंग्वेज के लिए, जो कि मैटर ही नहीं करती। जैसे फर्स्ट ईयर में हम केमिस्ट्री भी पढ़ते, फिजिक्स भी पढ़ते, सभी सब्जेक्ट पढ़ते। तो कुछ टीचर होते हैं हमारे इंडियन, मतलब इधर भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं। दैट इज अ नॉर्मल कॉलेज, जो एक नॉर्मल कॉलेज का सिनेरियो है, वैसे ही है, बस वही लैंग्वेज आपको वहाँ पे डिफरेंस भी है, मिलता है, सिर्फ एक बस। लैंग्वेज डिफरेंस है। सो मतलब हो सकता है ना?
बिल्कुल हो सकता है भाई, डिसाइड करो बस, हाँ। अपने से डिसाइड करो, हम्म बस अपना स्टेटमेंट दो कि हम्म ये मैं करूंगी और हम्म वो करके दिखाओ, दैट्स इट। अच्छा, वैसे रेट्रोस्पेक्ट में तुम्हें क्या लगता है कि ड्रॉप ईयर आसान रहता है या ये जो 6 साल का कजाक का? 6 साल इज द बेस्ट थिंग यू विल लीव इन योर लाइफ। हम्म मतलब एक गर्ल चाइल्ड के लिए भाई फ्रीडम क्या मिलता है। हम्म मैं रात के, मुझे नहीं हो रहा, मैं 12 बजे बाहर निकल रही हूँ घूमने के लिए, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉक। हम्म मैं जा रही हूँ सेफ, इट्स असेफ। हम्म रात के निकल रही हूँ 2 बजे सेफ, बट इंडिया में आफ्टर 9 and 10 फैमिलीज भी कहती है कि मत निकलो यार बाहर। हम्म तो ऐसा है, मतलब वहां पे तो एक इंडिपेंडेंस जो ओ होती माय है, गॉड। जैसे आपने भी बोला कि मैं आई वॉज द डैडीज गर्ल और या मैं पेरेंट्स के हमेशा प्रोटेक्शन में थी, विच दे डू आउट ऑफ करेक्ट इंटेंशंस या ऑलवेज ना, या कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने अच्छे के के लिए वो लिए ही करते बोलते हैं। हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, वो लाइफ जी के आए ना, हम्म तो अब ऐसे लगता है कि यार ये हमें अपोज कर रहे हैं, हम्म हमें सब चीज में ना क्यों बोल रहे हैं। मतलब हम्म इवन दिल्ली आना था, नहीं जाना चाहिए। मतलब पहले हम्म ऐसा रहता है क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है ना, पता नहीं कब क्या हो जाए तेरे साथ, तू अकेली ही है, ऐसा हम्म मतलब थॉट आ जाते हम्म। हैं इंडिया में। वैसे वहां कुछ नहीं था। अच्छा, आपने बोला कि आपको कहीं से सपोर्ट नहीं था एंड इन योर स्मॉल होम टाउन देयर वाज अ एक दूसरा एग्जाम्पल था जिनको सक्सेस नहीं मिली, तो शी बिकेम दी एग्जाम्पल जिसको सब लेके लड़कियों को या रोकते थे कि या आप मत भेजो, बिकॉज वो वहां जाएगी, सिर्फ या पैसा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, बीमार सिक्योरिटी की पड़ी। चिंता अलग, बाद में बन भी नहीं पाएगी डॉक्टर एंड एग्जैक्टली। ऑल ऑफ दैट। तो अगेंस्ट ऑल दोज ऑड्स जब आपने अपने पापा को कन्विंस किया एंड ही सपोर्टेड यू, ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमें देख रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि बट मेरे पापा तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम्म। उनको आप क्या कहना चाहते हो? हाउ कैन यू कन्विंस अ पेरेंट हु इज इनिशियली नॉट अलाइंड मुझे विद योर बस एक थॉट? ही कहना है यार, ऐसे नहीं कि, मतलब लड़की की तो बात मैं कर चुकी, लेकिन लड़कों का भी होगा कोई कि नहीं पेरेंट्स भेजते क्योंकि इतने दूर खर्चा वगैरह ये सब, एजुकेशन लोन वगैरह, मतलब नहीं होती किसी की। आउट ऑफ अब्रॉड जाने वाले बहुत मिडिल क्लास ही फैमिलीज है, कोई ऐसे टॉप रेटेड फैमिली तो है नहीं। तो अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो आपका क्लोज इंसान ढूंढो एक फैमिली में। हम्म मेरे पापा थे, मुझे होप्स थे कि वो एक इंसान है जो मेरी मान सकता है, तो मैंने मेरा उधर 100% दिया। हम्म आप फैमिली में एक मेंबर ढूंढो, वो आपकी बुआ हो सकती है, वो आपकी मम्मी हो सकती हम्म है, वो आपकी मासी हो सकती है। एक इंसान ढूंढो जिसको आपको पता है इसकी उंगली मैंने पकड़ी तो मेरा डिसीजन पॉजिटिव में जा सकता है, बस उनको मनाओ। और ऐसे नहीं कि बस हाँ डिसीजन ले लिया अब वहां जाके मजे करूंगा, मजे मैंने भी किए, लेकिन एट द एंड आपके बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि मैं क्या बोल के आया हूँ और मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है। मेरा गोल क्या मेरे है? पीछे किसी ने मेरे फैमिली के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए, जस्ट हम्म बिकॉज ऑफ मी। हम्म उन्होंने मेरे लिए किया है, आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू देम। हम्म तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर किसका भी हाथ पकड़ो, उसको बोलो कि प्लीज बी विथ मी, नॉट इन नॉट ऑलवेज इन फाइनेंशियल कंडीशन, बट समटाइम मेंटली वहां बहुत नीड रहती है लोगों की। हम्म तो बी विथ समवन कि जो आपको मेंटली रहे आपके साथ, और बस उसको प्रॉमिस करो और अपना प्रॉमिस निभाओ। मतलब ऐसे भटको वगैरह मत आए वहां जाके, मतलब भटकना इन द सेंस की स्टडीज के वे में, बाकी आप लाइफ एंजॉय करो, मैंने भी किए। मतलब मैं भी बहुत घूमी हूँ, मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स मारे, लेकिन जब यहाँ आई ना, दैट्स इट। मुझे मेरे पापा दिख रहे थे, मेरा घर दिख रहा था और सोसाइटी दिख रही थी, एंड जस्ट मेरे माइंड में एक था, इनको प्रूव करके दिखाना है भाई। अच्छा वैष्णवी, can you walk us through in a day in your life as a Kazakh या student, as a girl student जो वहाँ पे पढ़ रही है, for the students who are watching? सो क्या होता था यूजुअली, अभी विंटर्स चल रहे हैं ना, तो हमारा आरका भी करके एक हॉस्पिटल है विच इज 1 hour बस जर्नी। तो ऐसा रहता था कि यार खाने पीने का क्या करें, मतलब ऐसे नहीं होता था वहाँ ब्रेकफास्ट लंच, वहाँ पे 1 मील और 2 मील। आप ज्यादा ही खुद के बारे में सोचते हो तो 2 मील, वरना 1 मील पे दिन चलता था। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, कॉफी सुबह जल्दी जल्दी में बनी, जो भी कॉफी बनी, और उसके साथ ब्रेड और ऑमलेट। ऑमलेट तो बहुत फास्ट बन जाता है, उसमें ब्रेड में उसको ले लो, खा लो और हाँ निकल लो, बस हाँ निकल लो फास्टली। और फिर वहां जाके क्लासेस के ड्यूरिंग जो ब्रेक मिलती थी, मोस्ट टेरिबल जर्नी रहती है बस की, 1 hour की ठंडी में। तुम जैकेट पहने हो फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है, फिर तुम पहुंच जाते हो कैसे वैसे, फिर पहुंचना, फिर स्नो से चलते चलते जाना तुम्हारे क्लासेस के लिए, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली सामने हॉस्पिटल रहता है, स्नो से चलते चलते जाओ। फिर उनका रहता है कि सेकंड शूज चेंज करो, मतलब अपने शूज रखो फिर सेकंड शूज पहनो, फिर सब अपने को तैयार करो, फिर क्लासेस में जाओ। फिर क्लासेस शुरू होती है, फिर कभी मैम लेट आती है,
फिर ये सब तो नॉर्मली कितने होता बजे था। की क्लासेस है ये मॉर्निंग? 1 o'clock की क्लासेस रहती थी 1 हमारी। PM? हाँ 1 PM। हम्म, मॉर्निंग में कभी कभी रहती थी, मॉर्निंग में यूजुअली लेक्चर्स रहते थे और कभी कभी रहते थे वो, लेकिन 1 PM क्लास इज फाइनल, ऑल टाइम वो रहता ही था। हम्म, तो वो 1 hour बस की जर्नी और खाना दोपहर में से, जब टीचर क्लास रही किसी का भी पेट बच जाता था अरे भाई भूख लगी है छोड़ो प्लीज, हाँ, तो वो कॉफी वगैरह फिर लेते थे ब्रेक में, क्योंकि इतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना, वहाँ सैंडविच वगैरह रहता है, लेकिन उनका उनके टेस्ट बर्ड्स और इंडियन टेस्ट बर्ड्स ही डिफरेंट है, मतलब हम मैच ही नहीं कर सकते। हम्म, तो जो भी मिले वो खा लेते थे, चिप्स वगैरह भर लेते थे, फिर क्लास में चलो सेकेंड हाफ में, फिर जाते वक्त फिर बस से घर चलो, फिर शाम में आने के बाद एक स्टॉप फिक्स रहता था विच इज पैथरोज का, वहां पे जाना है, चीजें उठानी है। हम ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोचते थे, बस आज निकल जाए हमारा। फिर पैथरोज से चीजें उठाओ, घर आओ, चाय बनती थी, कॉफी नहीं बनती थी अब शाम में क्योंकि बहुत ठंड, और चाय बनती थी अदरक वाली, उसके साथ बिस्किट्स वगैरह खाओ, लग जाओ अपने काम पे, थोड़ा पढ़ो वगैरह, नहीं तो सो जाओ, रेस्ट करो थोड़ी, फिर शाम का खाना, फिर उसके बाद जितना पढ़ सको, मतलब आई गेस हम 1 hour और 2 hour ही पढ़ पाते थे in बट a day, whole day. कंसिस्टेंटली 1 or 2 hour पढ़ना इज Yeah, कैन टेक it यू is अ a लॉन्ग वे। yeah. तो बेसिकली सर्वाइवल मोड हमेशा ऑन था वहाँ पर। हमेशा ऑन था। एफएमजी होने के बाद ही हमारा पहला वर्ड था कि यार वी सर्वाइव्ड, वी सर्वाइव्ड ऐसा। सर्वाइवल। सो अच्छा, ये सुन के तो बहुत बच्चे डर भी सकते हैं। हाँ डर तो सकते हैं यार, लेकिन ना यहाँ रिपीट करने से अच्छा है, मच बेटर। यहाँ रिपीट करने से मतलब एक्चुअली वहाँ नॉइजेस ही नहीं है। अब्रॉड में लाइफ में क्या है, वहाँ अराउंड नॉइज नहीं है, जो तुम्हारा दिमाग तुमसे बात कर रहा है जस्ट दैट, और तुम्हारे पेरेंट्स बात कर रहे। यहाँ कैसे बाहर निकलो, अच्छा तुम्हारी बेटी का नहीं निकला, मतलब ऐसे सवाल, अच्छा आप क्या कर रही हो, मतलब आंसर्स बहुत करने पड़ते। वहां कोई नहीं पूछता तुम्हारे इन जनरल लाइफ, वहां बस ऐसे कुछ, आर यू हैप्पी, ओके, व्हाट आर यू डूइंग, जस्ट दैट, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते। इंडिया में बहुत क्वेश्चंस करते हैं लाइफ के बारे में। तो ये जो आपने बोला ना, आपके ये जो दिमाग के नॉइजेस कभी कभी दे आर लाउडर देन दोज अराउंड यू, तब आप कैसे डील करते थे? मतलब स्पेसिफिकली एफएमजी के टाइम पे बहुत लाउडर नॉइज थे वो दिमाग के, क्योंकि वो कभी कभी कहते कि तू फेल ही होने वाली, तुझे कुछ नहीं आता यार, जीटीज दी 130 पे आ रहे, मैं पेरेंट्स को कह रही 130 आ गए, वो भी नाराज, सब नाराज, मतलब फैमिली। लेकिन थ्रू आउट द जर्नी एक पर्सन मतलब आपके साथ चाहिए, जो मेरी मासी मेरे साथ थी। एक्चुअली शी इज BMS एंड शी वेंट टू यूके अगेन, शी स्टडीड देयर, अब वो मतलब IT में जॉब करती है। तो शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, कि वो कहती थी अरे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा ना, मतलब उससे ज्यादा क्या होगा, रिजल्ट के 1 घंटा पहले हम डिसाइड करे थे यार नहीं हुआ तो तू क्या कर सकती लाइफ में, तू क्या कर सकती, मतलब कुछ तो करेगी ना तू। तो वैसे सब डिस्कशन चलते थे, तो वो हमेशा थी मेरे साथ, मतलब पेरेंट्स को इतना हम हमारे फील्ड के बारे में कितना किसको समझाएंगे, तो वो एक थी क्लोज टू मी थी, जिसको पता था मेरे फील्ड के बारे में, तो वो थी, मतलब वो नॉइजेस शांत करने के लिए वो एक कॉल था मेरा, कि उसके साथ कि शांत करती थी वो नॉइजेस मेरे तो माइंड। बेसिकली आपको सपोर्ट सिस्टम ढूंढना है, वो कोई भी हो सकता है, वो ढूंढना कोई पड़ेगा, फ्रेंड हो सकता या है, तो आपका कोई इंस्टाग्राम हो सकता है, मैंने तो बंद कर दिया था, या तो आपके शॉर्ट्स हो सकते हैं यूट्यूब के, और मैं ना अलग सर के शॉर्ट्स देखती थी, मतलब वो जो होता है ना ऑरा एकदम, वो आते हैं स्टेज पे एकदम ऑरा हो जाता है, मतलब मजा ही आ जाता है कि यार कर लो तुम कर लो, मतलब अच्छा लगता है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान जब देखते हो, इतना हासिल कर चुका है लाइफ में, स्टिल ही इज डाउन टू अर्थ, तो ऐसे लगता है यार कर सकते, हम भी कर सकते, मतलब वो भी तो मिडिल क्लास से फैमिली से थे, हम भी तो एक, हम भी कर लेंगे। इंस्पिरेशन। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जब रिजल्ट आया था एफएमजी का, कहाँ बैठे थे? Where were you sitting? नॉर्मल मैं तो कुकर लगाने जा रही थी दाल राइस लगाने जा रही थी, और मुझे अचानक फ्रेंड का कॉल आ गया जो कल था, अरे रिजल्ट आ गया, PDF अचानक से आ जाती है ना, आ गया, मैं पहले शॉक, मैं पहले देखने लगी मेरा नंबर, फिर मैंने 182 देखे, मैं कहा इतने नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जिस तरह से मेरा पेपर 1 गया था, ओ माय गॉड, मैं कहा इतने नहीं आ सकते। तो फिर गई मासी के पास दौड़ के, तो शिवरिंग ही चल रही थी मेरी, वो कहा रुक मैं देखती हूँ, फिर उसने लैपटॉप ओपन किया, उसने कहा 182 ही है तेरे, फिर घर पे कॉल किया, मम्मी का पहला जब, भाई सही हुआ तू पास हो गई, जिस तरह से तूने हमें रखा था, मतलब मैंने ऐसे रखा था, उनको शांति, मतलब शांति चाहिए मुझे घर में बिल्कुल। पापा ने क्या बोला? पापा तो एकदम खुश, पापा कहते तुझे क्या चाहिए बता, बस आज के दिन तुझे चाहिए क्या मेरे से। पापा इतने खुश, सब घर वालों को कॉल करके मेरी बेटी पास हो गई, 182 मार्क्स से पास हो गई, पापा बहुत खुश थे उस दिन, ओ माय गॉड पापा बहुत खुश थे। तो ये दुनिया देखती है वो एफएमजी का एक पेपर, वो एक स्कोर, बट वो एक पेपर या एक एग्जाम नहीं है, वो 6 सालों की
लिटरली lonely nights, लिटरली loud डू एंड डाई noises. सिचुएशन रहती है Yes. वो 6 months मतलब बस वो 6 months इंडिया में, और उससे पहले के 5 साल 6 साल जो घर से दूर, फैमिली से दूर, Right. वो लोनली नाइट्स एंड स्ट्रगल, yeah वो पूरा कंपाउंड करके ये रिजल्ट बनाता है. इट्स नॉट Yes. जस्ट द 6 months जो आपने डेडिकेटेड एग्जाम को दिया है. yeah. So congratulations to you. Thank you My so much, heart ma'am. is feeling so happy and glad listening to your story, and I think all the girls out there जिनको थोड़ा ज़्यादा फेस करना पड़ता है restrictions from the society, अगर मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी हैं तो भी कभी कभी ये डिसीजन दिलवा लिया जाता है पेरेंट्स से कि आप ये मॉनेटरी या फाइनेंशियल अपना सेविंग्स लड़के पे लगा दो Yeah. रादर देन गर्ल पे. Yeah. सो आई थिंक आपने सबके लिए एक एग्जाम्पल बन के रास्ता खोला है, एंड आई वॉन्ट ऑल द गर्ल्स आउट देयर टू लर्न फ्रॉम वैष्णवीज एग्जाम्पल. यू कैन डू इट. आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए. यू कैन कन्विंस योर पेरेंट्स, और फिर आप करके दिखाओगे, देन इट विल ऑल पे बैक. सो थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर जॉइनिंग अस. Thank you so much, छोटा सा ma'am. पॉडकास्ट था बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. होपफुली वी विल सिट टुगेदर फॉर लॉन्गर, और Yeah. बहुत सारी बातें आई वुड लाइक टू डू विद यू Sure, जो ma'am. बाकी बच्चे भी सुनना चाहते हैं. Yeah. एंड लास्ट में मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि छोटे शहर की गलियों से निकली थी वो चुपचाप. न शोर था न ऐलान था. कंधे पे एक बैग था जिसमें पापा की दुआओं का सामान था. Oh my God, मैं शिवर कर रही हूँ ये सुन के. मतलब वाओ मैम, मतलब बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते. इट वाज टू मच पॉजिटिव वाइब्स ओनली. मतलब थैंक यू सो बहुत मच. सही थैंक लगा. यू सो मच. और एंड आपकी आई एम बात श्योर सुन मैं आपके साथ रहूंगी नीट पीजी के मेरे जर्नी के लिए भी. सो यू आर एक्चुअली इंस्पिरेशन. मतलब फैकल्टीज जो रहती है वो इंस्पिरेशन रहती है कि वो कहते हैं पढ़ो यार, पढ़ने से हो जाएगा, पढ़ लो बस. तो मतलब फैकल्टीज आर द इंस्पिरेशन. And thank you so much. From the yesterday, I'm only getting positive vibe from you. Thank you so much. हम हमेशा वी आर फॉर द स्टूडेंट्स. हम Yes. पूरे दिल से एंड हमेशा हम वी जस्ट पूरा दे देते हैं हम आप लोगों को. Yes, ma'am. दैट इज वाई जब आपका सक्सेस होता है तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ जीत लिया. सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर जर्नी. और बिल्कुल साथ में करेंगे और Yes. फट्टे चक देंगे बिल्कुल. Yes. Yes. राइट. So more power to All the girls. all the girls. specifically. Yes, definitely all the girls. And thank you so much. Thank you so बहुत much अच्छा for लगा. having me. मुझे भी बहुत अच्छा और लगा. भी बात करेंगे guys. So stay tuned for more such videos. We have many inspiring stories. Yeah. और आज on that note, I'll see you again next time. Also, see you in class.